یعنی کوئی بھی کسی بھی چیز کا بدلہ ہے، کسی بھی چیز کا جو اچھا بدلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ثواب۔ عقاب سزا، الا بنیت، مگر کوئی ثواب یعنی کسی بھی اچھے عمل کا کوئی بدلہ اور نہ ہی کسی برے عمل کی کوئی سزا نہیں ملے گی الا بنیت، مگر نیت کے ساتھ۔ اس میں کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ ہے قاعدہ، لا ثواب ولا عقاب الا بنیت۔ ٹھیک ہے، اب پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اس قاعدے کو کی شرح پڑھیں گے۔ کبھی کبھی انسان سویا ہوا رہتا ہے اور سونے کی حالت میں اپنے کسی بڑے قریبی ساتھی کو خوب گالیاں دے دیتا ہے۔ کس حالت میں؟ سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں خوب گالیاں دیتا ہے۔ ٹھیک، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے ہیں، بغل میں بھی کوئی سویا ہوا ہے اور خواب کی حالت میں اس کا ہاتھ چلتا ہے اور اس کو سامنے والے کو مار بھی لگ جاتی ہے یا مار بھی دیتا ہے کہہ لیجیے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ نیت نہیں تھی، ہاں یہ کام بغیر کسی نیت کے ہوا تھا، اس لیے اس کے اوپر کوئی سزا نہیں رکھی گئی ہے یا کوئی سزا نہیں ہوگی، نہ دنیا کی اور نہ آخرت کی۔ ٹھیک ہے، اسی نیت کی حالت میں اگر کوئی شخص بہت ہی نیک آدمی ہے، تسبیح گنتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، خواب کی حالت میں، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا، ملنا تو نہیں چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مستحق تو نہیں ہوتا کبھی بھی، یعنی اس کو مستحق لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں ویسے، کبھی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کو مل جائے الگ بات ہے، لیکن ہم دنیا میں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ اس عمل کو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کے لحاظ سے ہم یہی کہیں گے کہ نہ اس کو ثواب ہے اور نہ اس کے لیے کوئی سزا ہے، اس لیے کہ معاملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ سونے والے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، اس وقت وہ مکلف نہیں ہوتا ہے، اس وقت وہ مکلف نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرے کچھ سوالات پھر آئیں گے، لیکن ہم پھر اس پر آ رہے ہیں کہ ثواب یعنی کوئی اچھا بدلہ، عقاب یعنی کوئی سزا، یہ بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، راستہ چل رہے ہیں ہم، یہ ایک خاص طریقے سے شہروں میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، چھوٹے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے، بڑے شہروں میں کم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جانور چھوڑ دیا کرتے ہیں، ایسے جانور چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی تھوڑا مسئلہ کتے کا ہوتا ہے۔ کس کا؟ کتے کا ہوتا ہے، جانور ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب اگر راستہ چلتے ہوئے اس جانور نے کسی کو مار کر کے زخمی کر دیا، ہاں کوئی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی اس جانور کے مالک کے؟ ہاں مسئلہ یہی ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ایک الگ بات ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوگی یا نہیں ہوگی شریعت کے لحاظ سے؟ نیت تو نہیں تھی پر اس کو پتا تھا وہ ہوگا۔ جانور کا معاملہ کیا ہے؟ جانور کا کوئی بھی عمل کس سے خالی ہوتا ہے؟ نیت سے خالی ہوتا ہے۔ وہ عمل کس کا ہے؟ جانور کا، جانور کے مالک کا نہیں، کس کا ہے؟ جانور کا ہے۔ اس کے لحاظ سے سوچیے، عمل جانور کا ہے، نہیں ہوگی؟ فرق ہونا چاہیے، شاید جو ہے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہی اگر گائے بکرا وغیرہ کچھ ہے نقصان نہیں۔ چلیے ہم گائے بکرے کی بات کر لیتے ہیں، فی الحال جو ہے گائے بکرے کی بات کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ گائے بکرے ہی کی بات ہے، کسی شخص کا کوئی سامان رکھا ہوا تھا، وہاں سے بکرا گزرا اور اس نے جو ہے منہ لگایا اور کھا لیا، کیا اس شخص پر جس کا وہ بکرا ہے یہ
उस पर उससे तलब किया जाएगा कि जितना उसने खाया है उतना पैसा दो, उसका हर्जाना दो, या नहीं तलब किया जाएगा। जितना भी जानवर के जरिए से चाहे नुकसान होता है या और कोई चीज हो जाती है, शरीयत ने कहा है कि ये सब की सब हदत बातिल है, यानी उस पर आप कोई भी तावान या कोई भी उसकी जो है उसका बदल या उसके बदले में जो उसने नुकसान किया है आप उसके मालिक से तलब नहीं कर सकते, सब की सब। लेकिन जैसा कि अभी हमारे शाकिर भाई ने कहा, वो एक मसला है कि उसमें मालिक की तरफ से क्या कोई सुस्ती कोई चीज ऐसी तो नहीं थी, उसको देखा जाएगा। तो वो अमल के लिहाज से नहीं बल्कि मालिक की अपनी जिम्मेदारी के लिहाज से वो मालिक का मामला है। लेकिन जहां तक अमल का मामला है वो उसमें न कोई सवाब है न कोई सजा है, इसलिए कि जानवर के पास कोई नियत नहीं है अमल करने में। हाँ, मालिक की सुस्ती थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, उसकी वजह से मालिक के ऊपर कोई जुर्माना लगाया जाए, वो उस अमल के लिहाज से नहीं है, मालिक की सुस्ती के लिहाज से। उसके बारे में ये शरीयत इबादत की हदीसों में ये आता है कि अगर जानवर की तरफ से दिन में ये चीज हो जाए तो कोई सजा नहीं है मालिक के लिए, यानी मालिक के ऊपर कोई जुर्माना नहीं है। लेकिन अगर ये चीज रात में हो जाए जानवर की तरफ से तो मालिक के ऊपर जुर्माना होगा, क्योंकि रात में उसकी जिम्मेदारी थी कि जानवर को बांध के। यानी ये थोड़ा फर्क है, मैं वो फिलहाल मसला नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कायदा है उसकी की मैं शरह कर रहा हूँ कि कैसे बगैर नियत के कभी भी न सवाब है और न इकाब है, न सजा है और न ही अच्छा बदला है। ठीक है, छोटा बच्चा है, उसने हज किया, उसको सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी मुकल्लफ नहीं, इसलिए उसकी नियत का भी कोई हिसाब नहीं है। अभी छोटा बच्चा है, मैं अभी इतने छोटे की बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके पास अभी शौर नहीं है, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ आपसे। थोड़ा और बड़ा भी हो सकता है, शौर भी हो सकता है, अभी फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। इतना छोटा बच्चा है, उसके पास शौर नहीं है, उसके वालिदैन उसको हज के लिए लेकर के गए हुए हैं। हज उसका होगा नहीं होगा? सवाब जो है किसको मिलेगा? वालिदैन को, उसके लिए नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई नियत नहीं। ठीक है, उसके पास कोई नियत नहीं है। अगर उसी छोटे बच्चे से कोई गलती हो जाती है, सजा होगी नहीं होगी, एक आपका मामला। हाँ, नहीं होगी, यकीन है नहीं, ये तो कोई मामला नहीं है। छोटे बच्चे ने अगर चोरी कर लिया, 5 साल का बच्चा है, हाथ काटेंगे नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे, इसलिए कि ला सवाब वला इकाब इल्ला। कोई आदमी आपसे पूछ सकता है कि भाई छोटे बच्चे का चोरी करे तो हाथ नहीं काटा जाएगा, इसकी क्या दलील है? जाहिर सी बात है, कुरान में तो सिर्फ इतना ही है कि चोर करने वाला मर्द हो या औरत हो, यानी मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, उसमें मर्द औरत भी नहीं है, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, उसका हाथ काटा जाएगा। तो ये बच्चा है, चोरी किया, इसका हाथ काटना चाहिए, नहीं काट सकते, क्यों? शरीयत के अंदर क्या है, कुछ उसूल है, उसमें से कि ये भी है, ज़ाब्ता ये भी है कि ला सवाब वला इकाब इल्ला बिनियतिन, कि ना सवाब है और ना सजा है मगर किसके साथ? नियत। जब तक नियत नहीं होगी उसके ऊपर कोई अमल नहीं, कोई हुक्म नहीं लगाएंगे। ये भी ध्यान में रखिए, ये सवाब और इकाब आखिरत के लिहाज से भी हो सकता है। मैंने जितनी भी मिसालें दी आपको सिर्फ किसके लिहाज से दी है? दुनिया के लिहाज से, क्योंकि हमारा असल मामला जो इसके अंदर होता है वो दुनिया में फैसला करने के लिहाज से होता है। आखिरत का मामला भी ऐसे ही है, उसका इनकार नहीं है। आखिरत में भी किसी शख्स को कोई अच्छा बदला किस पर मिलता है? उसकी नियत की बेस पर मिलता है किसी भी अमल के अंदर। ऐसे ही कोई भी सजा होगी तो उसकी नियत के लिहाज से आखिरत में उसको सजा मिलेगी। अगर नियत नहीं थी तो उसको उसके लिहाज से उसकी कोई सजा नहीं मिलेगी। आखिरत का मामला भी ऐसे ही है, तो चाहे दुनिया का मामला हो चाहे आखिरत का मामला हो, दोनों का। लेकिन हम बातें किसके बारे में करते हैं यहाँ पर? दुनिया के लिहाज से करते हैं कि दुनिया में किसी भी शख्स को कोई इनाम भी अगर देना है तब भी नियत, उसने जो काम किया है उसमें उसकी नियत क्या थी? सजा देना है, तब भी हमें इसका ख्याल करना होगा। ठीक है, ला सवाब वला इकाब इल्ला बिनियतिन। मेरे ख्याल में कायदा समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।
बगैर नियत के न सवाब की बात होती है न इक़ाब की बात शरीयत के अंदर, न अच्छे की न सजा के ताल्लुक से कोई बात। यहाँ तक कहा गया है कि बच्चे से कोई भी जुर्म हो जाए तो बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती। ये गुंजाइश रखी गई है कि हाँ, ये गुंजाइश रखी गई है कि आप उसको हद तो जारी नहीं कर सकते, जो शरीयत के अंदर मखसूस सजा मानी जाती है उसी को हद कहते हैं। जैसे चोरी किया है तो हाथ काटेंगे, शराब पी लिया है तो 40 कोड़े लगाएंगे, किसी पर जिना का इल्जाम लगा दिया है तो 80 कोड़े। ये जो सजाएं हैं ये सजा आप नहीं दे सकते उसको, इसलिए कि बच्चा है। लेकिन अदब सिखाने के लिए उसे मारा जा सकता है। वो सजा इस्लामी सजा तो नाफिज नहीं कर सकते, लेकिन अदब सिखाने के लिए उसको मारा जा सकता है। इतनी गुंजाइश सिर्फ शरीयत ने रखी है। ठीक है, उसी को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं उसको कि बच्चा अगर नमाज ना पढ़े तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि 10 साल का हो जाए और ना पढ़े तो क्या कर सकते हो, उसको कहते हैं तादीब के लिए, सजा के लिए नहीं। बच्चे को सजा देना जायज नहीं, इस्लाम ने उसको जायज नहीं, लेकिन अदब सिखाने के लिए बच्चे को कुछ मारा जा सकता है या कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो किसके लिए होगा, अदब सिखाने के लिए होगा, सजा के तौर पर नहीं। क्योंकि बच्चे का कोई जुर्म नहीं माना जाता है नियत न होने की वजह से, क्योंकि अभी वो मुकल्लफ नहीं है। ठीक है, बच्चे ने अगर किसी का कोई सामान तोड़ दिया है, कोई सामान किसी का तोड़ दिया है, क्या हुक्म आएगा उसके ऊपर, क्या हो जाएगा? कोई सामान तोड़ दिया है किसी का, ऐसा ही ज्यादा होता है, बच्चे इसी तरह की शरारतें ज्यादा किया करते हैं। दूसरे का सामान था, लिया तोड़ दिया। जिसका सामान है वो मुतालबा कर रहा है कि मुझे इसका बदल चाहिए। अरबी में नहीं, शरीयत के मसले के लिहाज से इसको कहते हैं मुतलफात, ज़मानुल मुतलफात। हम बच्चे को छोड़ देते हैं, कोई भी शख्स, कोई बड़ा आदमी है, मुकल्लफ आदमी है, बालिग आदमी है, उसने किसी दूसरे का कोई सामान तोड़ दिया या इस्तेमाल कर रहा था, उसकी वजह से वो चीज खराब हो गई है या वो चीज टूट गई, उससे चोरी हो गई, कोई भी मामला हो गया, तो उसको उसका बदल देना है। या तो अगर वो चीज मिलती है उसी की मानिंद उसमें बाजार के अंदर, तो वो चीज खरीद करके देगा, नहीं तो उसकी कीमत देगा। ये शरीयत का उसूल है। किसी की गलती से किसी का कोई सामान टूट गया हो या तोड़ दिया है उसने जानबूझ करके, बच्चे से यही चीज हो जाए तो क्या ख्याल है हम लोग, सजा देंगे नहीं देंगे? सजा तो नहीं है यहाँ पर, हर जाना उसका देंगे नहीं देंगे, वो है मसला यहाँ पे। लापरवाही भी नहीं थी, लेकिन बच्चा था, बच्चे ने छोड़ दिया। सामने वाले का सामान तो टूटा ना जी, बेचारे का सामान नुकसान हो गया है ना, फिर भी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उस नुकसान की भरपाई उसके वालिदैन नहीं करेंगे। वालिदैन का हक होता है कि बच्चे की जो भी गलती है जाने में ना जाने में, तो वालिदैन की हक होता है कि उसको पूरा करें। जी हाँ, कोई सजा तो नहीं देंगे उसको, ना ही कोई सवाब ना ही कोई सजा, लेकिन जो चीज बदल के तौर पर मानी जाती है, जिसको ज़मान कहते हैं अरबी में, यानी हर्जाना भरने का, वो छोटे बच्चे के उस पर भी जो है हर्जाना भरना पड़ेगा। ये सजा किसको, सजा नहीं होती असल में, ये असल में उसके वालिदैन को करना पड़ता है। हर्जाना देना अलग है और सजा अलग है। उसको इक़ाब तो नहीं है, यानी सजा तो नहीं है, लेकिन हर्जाना जहां देना पड़ेगा, यानी उसने किसी और का सामान तोड़ दिया है, उस सामान के तोड़ने की वजह से अब उसको दूसरा सामान देना है उसको, तो वो उसको देना पड़ेगा। देंगे कौन? उसके वालिदैन देंगे। एक हर्जाना है, हर्जाना देना पड़ेगा, सजा नहीं है उसके ऊपर।
ठीक है। अभी मैंने सजा की बात की आपको, अगर चोरी कर लिया उसने तो उसका हाथ तो नहीं काटा जाएगा, लेकिन जिसका सामान चोरी किया था, 10 रुपये उसने किसी की चोरी किए थे, उसके वालिदैन उसके वो 10 रुपये चोरी करके वो लेके खा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके वालिदैन वो 10 रुपये उसको दे देंगे, ये अलग चीज है। ठीक, हर्जाना देना अलग है और सजा अलग है। सजा नहीं होगी उसको बच्चे को, लेकिन बच्चे की गलती पर उसका जो हर्जाना भरना है उसके वालिदैन भर देंगे, उनकी तरफ से ये चीज होगी। ठीक है, ठीक है, कोई वो मसला नहीं, वो उसके वो सामने वाले के ऊपर होता है। असल में ये जो भी हर्जाने का जो मसला होता है वो सामने वाले के ऊपर, जिसका सामान टूटा हुआ है अगर वो तलब कर रहा है तो देना पड़ेगा। जानवर के बारे में बोले थे कि अगर वो दिन में अगर जाके किसी का जी खा लेता है तो उसको तो कुछ नहीं, लेकिन अगर रात में ज्यादा तो दिन में उसके लिए शरीयत ने क्या कहा कि दिन में उनकी जिम्मेदारी थी, किनकी, जिनका सामान है, कि वो उसको खाने ना देते, अपने सामान की वो खुद हिफाजत करते। उन्होंने नहीं किया, जानवर ने खा लिया, अब उसको कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की। यही मामला अगर रात को रह रहा है, दिन और रात में फर्क किया, रात को कर रहे हैं तो रात को उसको बांध के रखने की जिम्मेदारी किसकी थी, मालिक की थी। अब उसने किया है तो मालिक को देना पड़ेगा, वो मालिक की तरफ जाता है किसी को, क्योंकि वो जिम्मेदारी उसकी थी हिफाजत करना। उसने हिफाजत नहीं किया अपने सामान की या अपने खेत की, जो भी ये मामला, ज्यादा मामला खेत वगैरह चरने का ही होता है, अपने खेत की उसने हिफाजत नहीं की, इसलिए उसके मालिक पर कोई हर्जाना नहीं होगा, क्योंकि वो जानवर है, जानवर का तो ये काम है। बच्चा से कोई किसी के पास में जाके खा लिया, हाँ और फिर मालिक बोला कि इतना फल खा लिया, जी, बच्चा और जानवर में मतलब नहीं, बच्चे को थोड़ा जो है उसमें और बच्चे में फर्क है, जानवर और बच्चे में इस सिलसिले में फर्क है। बच्चे के ताल्लुक से बच्चा जो है सजा के तौर पर तो वो मुस्तहिक नहीं होता है, लेकिन किसी का कोई सामान अगर वो ज़ाय करता है, कोई चीज करता है, तो वो अपने सामान के हर्जाने का मुतालबा कर सकता है, वो जायज है उसके लिए। ये भी मामला हो, बच्चे को इतना तो मालूम होता है कि वो किसी के बाग से जो है वो फल खाना जायज है या नहीं है। अगर बच्चा करता है कोई ये, तो जो है हर्जाना भरना पड़ता है, हर्जाने की हद तक जो है ये रखा गया है, वरना फिर वो बड़े मसाइल पैदा होंगे। वो तो आप सोच ही सकते हैं कि बच्चों के लिए कोई जो है मसला नहीं है, तो लोगों के जो है वो करते रहेंगे, तो वो रखा गया है, हर्जाना देना पड़ेगा, सजा बच्चे के ऊपर नहीं होगी बस। तो ये है ला सवाब वला इकाब इल्ला बिनियतिन, ठीक है। ये कदर समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ो। किसी और के बच्चे को अपनी कोई कीमती चीज अपनी मर्जी से उठा कर दे खेलने के लिए, तो उसके वालिदैन जो है अगर देखते तो हाथों से मना कर दे, जी हाँ, नहीं भाई ये मत लो, ये उसका मामला है, उसका अपना मामला है, बच्चे का कोई मामला चार तोड़ दिया उसके बाद जान कुछ भी वजह हर्जाना कुछ नहीं दे। क्योंकि हमारे तो उसकी वजह से नहीं हुआ था, हमारा उसमें कोई दखल भी नहीं है। मैंने कहा ना कि वो असल में सामने वाले के मुताबिक पर भी ये चीज डिपेंड करती है। हर्जाने का जो मामला है, सामने वाला जब हर्जाना तलब करता है तभी हर्जाना दिया जाता है। वो कहे नहीं कोई बात नहीं तो कोई मसला ही नहीं, वो ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद तलब कर रहा है, नहीं वो गलत है, उसका तलब करना, यही कहेंगे आपका तलब करना गलत है। आपसे किसने कहा था कि आप उसको बच्चे को दे दीजिए? अगर वालिदैन की मर्जी से हुआ है तो फिर वो सोचना पड़ेगा। वालिदैन को पहले ही मना करेगा इतनी कीमती चीज बच्चे को खरीद देगा। माला तदखुलुहु नियतु मिनहा अफ़आल तुरुक, माला तदखुलुहु नियतु मिनहा अफ़आल तुरुक। ये कायदा खास तरीके से आप अच्छी तरह से इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी
कि कई शिक्के हैं, यानी कई उसकी शक्लें बनती हैं, सूरतें बनती हैं। पहले मैं आपको अल्फाज की शरह कर दूं जो अरबी ज़बान में है। मा ला तदखुलुहु नियतु, ये मा नफी का नहीं है, मौसूल इसको कहते हैं। आप में से जो लोग भी अरबी पढ़े होंगे तो उनके लिहाज से मा जो है ये क्या है, मौसूल का कहलाता है, यानी इसमें नफी का माना नहीं होता है, निगेटिव के लिए माना नहीं होता है, बल्कि ये से विच, ये उस तरह से कहते हैं वो जो है माना मा के अंदर, इसको इसमें मौसूल कहते हैं अरबी में, वो है। ला तदखुलुहु, ये ला जो है नफी वाला है। ला तदखुलुहु नियतु, यानी वो काम जिसमें नियत दाखिल नहीं होती है, जो बगैर नियत के होते हैं, वो काम जिसमें नियत दाखिल नहीं होती है, उसमें से क्या है, अफ़आलुत तुरूक है। अफ़आलुत तुरूक की वजाहत अभी कर रहा हूँ, सिर्फ फिलहाल इतना कीजिए, जिन कामों में नियत नहीं होती है इंसान के, उसमें से कौन है, अफ़आलुत तुरूक है। अफ़आलुत तुरूक, मैं उसकी वजाहत करता हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना समझिए, मा ला तदखुलुहु अन्नियतु मिनहा अफ़आलुत तुरूक, जिन कामों में नियत नहीं होती है, नियत नहीं होती है, नहीं दाखिल होती है, उसमें से क्या है, अफ़आलुत तुरूक है। अफ़आल तो जानते हैं, फेल की जमा, कोई भी काम है, तुरूक तर्क की जमा, छोड़ना। तो जिन कामों में नियत नहीं दाखिल होती है, उसमें से वो तमाम काम है जिनको छोड़ा जाता है, जिनको किया नहीं जाता है बल्कि छोड़ा जाता है। छोड़ने को फेल कहेंगे या नहीं कहेंगे, यानी करना कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो एक मसला है उसूलियों के यहाँ, उसूल फिक्र में, यानी और उसमें सही बात यही है कि उसको भी फेल कहा जाता है। छोड़ना भी क्या एक तरह का फेल है, उसी के लिहाज से एक कायदा है। तो इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, मैंने कहा था किसी किसी में इख्तिलाफ भी आएगा, लेकिन यही है कि ज्यादातर उसूलीन यही कहते हैं कि छोड़ना भी किसमें शामिल है, फेल में शामिल है, उसी के लिहाज से ये बहस होगी। तो अफ़आलुत तुरूक का मतलब क्या है, जो काम छोड़ता है इंसान, तर्क करता है, उसमें नियत दाखिल नहीं होती है। ठीक है, उसमें नियत दाखिल नहीं होती है। हाँ, हमने से कोई भी सिगरेट नहीं पीता है, हाँ, नियत है या नहीं है उसमें, नहीं है, इसको कहते हैं अफ़आल, जो चीज छोड़ता है इंसान, नहीं कर रहा है, छोड़ रहा है, इसे, उसमें नियत नहीं होती है। जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें आप ध्यान में रख लीजिए, आपको वो नहीं कर रहा है, छोड़े हुए। बहुत सारे लोग आप लोगों में से भैंस का कुछ नहीं खा रहे हैं, कोई नियत है क्या दिल में उसके लिए छोड़ने के लिए, कोई नियत नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें सोच लीजिए आप, हम बहुत सारे काम जिसको कहते हैं तर्क, छोड़ना, तो छोड़ने को भी अरबी में फेल कहा जाता है, उसके लिहाज से इसको अफ़आलुत तुरूक कहा है, यानी इसमें नियत नहीं होती है, यही असल है। ठीक है, यही असल है, इसमें कोई नियत नहीं होती है। जब नियत नहीं है, और इसके पहले कायदा क्या आया था कि सवाब और इकाब किसके ऊपर है, नियत के ऊपर है, तो क्या छोड़ने के बाद सवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसमें तो नियत है ही नहीं, नियत है ही जी, नहीं, नियत नहीं है उसके अंदर। मैंने इसीलिए कहा था कि इस पर जरा थोड़ी देर बैठ करके सोचिए कि जो है इसकी शिक्कत है। असल जो है नियत, इसमें से बाद शक्लों में सवाब होता है और बाद में सवाब नहीं होता है, ये अजीब है इसमें। और ये दोनों कायदे एक साथ मिला के देखना पड़ेगा आपको, ला सवाब वला इकाब इल्ला बिनियत। और ये है कि इसके अंदर नियत नहीं है, तर्क में नियत नहीं है। छोड़ रहा है, बहुत सारी चीजें सुबह से शाम तक छोड़ता है, वो हराम चीजें हैं उनको भी छोड़ता है, लेकिन उसमें कोई नियत नहीं होती, उसके दिल में कभी ख्याल भी नहीं गुजरा होगा उसको। बट हराम चीज नियत की यही होती है कि हराम चीज छोड़ देना, बस वो आम जो उसके इसमें है नियत, उसका अल्लाह ताला क्या उसको सवाब मिल सकता है कि उसके दिल में कोई भी हराम चीज के मैं करीब में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई खास उसमें से जिसको पर्टिकुलर है, कोई भी एक चीज, जैसे मैंने कहा अभी आप सिगरेट नहीं पिया, उसने सिगरेट छोड़ने का उसको जो सवाब खास तरीके से मिलेगा क्या, ये एक मसला है, तो उसको उसका कोई सवाब नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं होता है कि उसमें कोई नियत नहीं है। जो छोड़ने की चीजें हैं, जितने भी अमल है, उसमें नियत नहीं होती है। मैंने आपसे कहा कि बाज़ औक़ात उसी में नियत हो जाती है, उसी में नियत
हो जाती है। सिगरेट छोड़ना भी एक नियत ही है ना? नहीं, वो तो जैसे एक आदमी सिगरेट पी रहा था, उसने छोड़ा तो उसकी नियत हो सकती है, लेकिन जिसने कभी हाथ ही नहीं लगाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डर के हाथ नहीं लगाना। कोई भी ऐसी जो है चीज जो कि वो करता ही नहीं है सिरे से, बचपन से उसकी कोई आदत ही नहीं है ऐसी, तो जाहिर सी बात है उसके दिल में उसके ताल्लुक से कभी कोई ख्याल भी नहीं गुजरता। जैसे मैंने एक मिसाल दे रहा आपको भैंस के गोश्त की, जाहिर सी बात है जिससे कोई भी यहाँ भैंस का गोश्त नहीं खाता है, उसके लिहाज से कभी उसके ख्याल ही में नहीं आया, दिल ही में नहीं आया, तो नियत कहां से होगी उसको छोड़ने की। तो इस तरह की चीज पर जो कि हराम भी है शरीयत के अंदर और छोड़ दिया है उसको, और उसमें कोई नियत नहीं है, तो उसका जो मामला है वो यही है कि अफ़ाल तुरुक में कोई नियत नहीं होती है, तो उस पर कोई सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कायदा उसी कायदे में आएगा कि जिसमें कोई नियत ना हो, न कोई सवाब है और न इक़ाब है, न सजा है न सवाब है। मैंने ये भी कहा था आपसे कि इसमें बाज़ मानी इसमें सूरतों में नियत दाखिल होती है तो वहां सवाब मिलता है। मैं अब आपको वही सूरतें कहा था कि आपसे कि बहुत सूरतें हैं, वो सूरतें मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 1, पहली सूरत, एक आदमी एक बुराई के बिल्कुल करीब जा चुका है और बुराई करने का पुख्ता इरादा कर लिया है पूरे तरीके से, ठीक है, लेकिन एंड टाइम पे अल्लाह का खौफ ऐसा दिल में आया कि उसने वो छोड़ दिया। नियत आई इसमें या नहीं आई? नियत आ गई छोड़ने में, आई नियत आ गई। अब छोड़ने का उसको सवाब मिलेगा, उसको सवाब मिलेगा, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है 7 लोग जिनको सब यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उसमें है नहीं, उसमें एक क्या है, वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। यानी सारी जो है उसकी पूरी जो भी चीजें होती हैं ज़िना की, मुकम्मल तरीके से सारी चीजें मौजूद थी और सारे असबाब भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी सिर्फ अल्लाह के खौफ से उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया। ये छोड़ना इसमें नियत है, और इस छोड़ने में उसको क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा, ठीक है। एक शख्स है सिगरेट का बहुत आदी था, सिगरेट का बहुत आदी था। उसके बाद उसको किसी ने नसीहत किया कि देखो भाई इस्लाम में ये जायज नहीं है, हराम है, ऐसा है वैसा है। उसके बाद उसने पूरे इरादे के साथ क्या किया, उसको सिर्फ इस वजह से कि इस्लाम में हराम है उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने का उसका साथी बैठ करके उसको पेश भी कर रहा, लेकिन कहा नहीं नहीं मैं इस्लाम में जायज नहीं है, मैं नहीं पीता हूं। तब उसको इस छोड़ने का क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा, क्योंकि यहाँ छोड़ने में क्या शामिल हो गया है, नियत शामिल हो गई है उसकी। ये भी तर्क है, लेकिन इस छोड़ने में क्या है, नियत शामिल है। पहले वाले छोड़ने में नियत शामिल नहीं थी, यहाँ उसको उसका सवाब मिलेगा सिर्फ छोड़ने की वजह से। हालांकि कुछ किया भी नहीं उसने, सिर्फ क्या किया है, उस बुरी चीज को छोड़ दिया है, उस छोड़ने पर उसको सवाब मिलेगा, ठीक है। 3 आदमियों का वाकया याद है आप लोगों को, गार का, क्या है उसमें, उसने अपने नेक अमल में से इसको भी बताया है कि एक आदमी ने कि वो पूरी तरीके से वो उस औरत पर हावी हो चुका था, उसने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह से डरो, वो डर उसके दिल में आ गया और उसने छोड़ दिया। वो छोड़ने को भी अमल शुमार किया गया, काम शुमार किया गया, और वो छोड़ना भी क्या है, नियत के साथ है, अल्लाह के खौफ से, उसको उसका अजर मिलेगा और नेक अमल हुआ। तो अफ़ाले तुरुक मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इसकी कई सूरतें बनती हैं, कई शिक्कें बनती हैं, वो सबको जहन में रखिए। जो काम छोड़े जाते हैं उसमें नियत नहीं होती है, यही असल कायदा है, और जिसमें नियत नहीं होती है उसमें सवाब नहीं होता है, ये एक कायदा है। लेकिन यही चीज कभी उसमें जब नियत दाखिल हो जाती है तो फिर क्या आ जाता है, सवाब आ जाता है, ठीक है। अब मैं इक़ाब की बात लेता हूं आपको। अब तक कितनी मिसालें दी आपको, सब की सब छोड़ने पर सवाब, छोड़ने पर, अभी छोड़ने पर जो है अजाब भी हो सकता है,
क्या चीज छोड़ने पे? नमाज। नहीं करना। ये तो दूसरी चीज है, वही बुराई की बात कर रहा हूँ आपसे। यानी हम किसके बारे में चल रहे हैं? अफ़आल तुरूक, यानी जिसको शरीयत में छोड़ने का हुक्म दिया गया, करने का हुक्म दिया गया, उसकी नहीं। यानी ये इसको ध्यान में रखिएगा, हम किसकी बहस कर रहे हैं? अफ़आल तुरूक मतलब क्या है? जिसको शरीयत में छोड़ने का हुक्म। नमाज का इसमें वो मिसाल नहीं आएगी है? जैसे कि मिसाल यही है, ये ज़िना वगैरह की मिसाल में थोड़ा सा वो रहता है। मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ, सिनेमा की मिसाल देता हूँ। किसकी? सिनेमा की मिसाल। बच्चे मदारिस में पढ़ते रहते हैं तो कभी कभी फिल्में देखने के लिए भी बड़ी पाबंदियां होती हैं, लेकिन जब पाबंदियां होती हैं तो आदमी का दिल भी ज्यादा मचलता है उसको देखने के लिए। घरों में हो तो कोई ज्यादा उतनी ख्वाहिश नहीं होती है। तो बच्चे सारे कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए कभी कभी क्या करते हैं? जाते हैं देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए जाते हैं। अब एक बच्चा फिल्म देखने के लिए गया हुआ है, उसने टिकट भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, अंदर चला भी गया, लेकिन उसमें मैं देखा कि एक उस्ताद खास तरीके से आज उन बच्चों को नोट करने के लिए आए हुए हैं जो फिल्में देखने वाले हैं। देखते ही वो भाग लिया वहां से। फिल्म देखा नहीं, फिल्म देखा नहीं, फिल्म छोड़ने का उसको गुनाह होगा या नहीं होगा? फिर से कहूं, ये भी तर्क है, ये छोड़ना है, काम किया नहीं, छोड़ा उसने उसको। लेकिन इस छोड़ने के बावजूद पहले छोड़ने पर क्या होता? उसको सवाब था, नियत दाखिल थी उसमें। इसमें भी नियत दाखिल है। क्या दाखिल है? नियत। कौन सी नियत है? ये करने की नियत है। करने की नियत हो जाने के बाद, जो पुख्ता इरादा जिसको कहते हैं, बुराई का पक्का इरादा हो जाने के बाद, अगर किसी मजबूरी की वजह से आदमी बुराई नहीं कर पाता है तब भी उसकी बुराई लिखी जाती है। नियत की वजह से यहां क्या होगा? उसको अमल तो नहीं हुआ है, लेकिन अमल करने की नियत थी। नियत का मतलब क्या है? कस्द, पक्का इरादा था उसका। तो अल उमूर बिमकासिदिहा, उसके मकसद के लिहाज से यहां उसको क्या होगा? हाँ बोलिए। उसके लिए इक़ाब है, सजा है। तो नियत के ऊपर सवाब भी है और नियत के ऊपर क्या है? इक़ाब भी है। और अफ़आल तुरुक में कभी कभी नियत आ जाती है। जब नियत आ जाएगी तो सवाब भी होगा और इक़ाब भी है, सजा भी है। ठीक, एक मिसाल देता हूँ हदीस से। मैं तो ये आपके वाक़े की मिसाल दिया मैंने कि ऐसा होता है। हदीस से एक मिसाल देता हूँ मैं आपको इसी चीज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल कातिल वल मक़तूल किलाहुमा फिन्नार। अल कातिल वल मक़तूल किलाहुमा फिन्नार, यानी कातिल भी और मक़तूल भी, जिसका कत्ल हुआ है, जिसने कत्ल किया और जिसका कत्ल हुआ है, दोनों कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। तो सहाबे कराम को क्या हुआ? तअज्जुब हुआ, ये कैसे? कहा कि हादल कातिल फमा बालुल मक़तूल, भाई कत्ल करने वाला कत्ल के जुर्म में जहन्नम में जाएगा, मक़तूल ने तो कोई जुर्म नहीं किया है, वो क्यों जहन्नम में जाएगा? उसकी भी नीयत तो एक थी जी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? लिअन्नहु कान हरीसन अला क़त्ल साहिबी, इसलिए कि ये भी अपने साथी को कत्ल करने का हरीस था, यानी उसकी भी नीयत थी ये काम करने की। तो उस नीयत की वजह से उसको क्या मिलेगा? उसको सजा मिलेगी। तो नीयत की वजह से उसको सजा मिल रही है, काम तो उसने नहीं किया है। जिस काम को छोड़ने का हुक्म दिया गया वो क्या है? कत्ल है। उस काम को उसने अंजाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसको उस काम की क्या मिल रही है? सजा मिल रही है। सिर्फ किस वजह से? कि उसके दिल में उस काम के करने की नियत थी। नियत कैसी थी? पक्का इरादा। ये भी जरा सा फर्क कीजिएगा। इसमें तीन चीजें अब तक मैं जो बयान की, तीन चीजें। कभी बुराई का सिर्फ इरादा होता है दिल में, लेकिन कोई कस्द नहीं होता। फिर से कहूं, मैंने एक शुरू में शादी दोस्त बताया था आप लोगों को कि एक हम होता है अरबी में, एक कस्द होता है, बताया था नहीं? एक है सिर्फ बुराई का इरादा आया दिल में, लेकिन कोई बंदे ने कस्द नहीं किया बुराई का। तो
اسلام میں یہ معاف ہے، کیونکہ ابھی نیت نہیں آتی ہے کرنے کی۔ لیکن اگر برائی کی نیت کر چکا ہے، جس کو قصد کہتے ہیں، قصد کر چکا ہے، تو پھر اس کو اس کی گناہ اس کا لکھا جائے گا، چاہے وہ گناہ نہ کر پائے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب انجام دے لیتا ہے تو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک نیکی، لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی چیز نہیں لکھی جاتی ہے۔ جب برائی کرتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اس میں جو ہے صرف ہم کا لفظ استعمال، ہم کا مطلب کیا ہے؟ دل میں ایک خیال آیا لیکن اس کا کوئی قصد نہیں ہوا، یعنی باقاعدہ اس کو مقصد بنا کر کے اس کام کے لیے وہ گیا نہیں، کوئی چیز ہوئی نہیں اس کے اندر، تو مطلب یہ کہ ابھی اس کام کی نیت اس کے دل میں آئی نہیں تھی، تو اس پر کوئی عقاب نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی سزا نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اگر کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو ایک نیکی کا دے دیتا ہے۔ آگے بات یہ، تو افعال ترک میں تینوں شقیں آگے، ایک کیا ہے؟ عام حالات میں جو بھی انسان جو چیزیں چھوڑنے کا حکم جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے چھوڑنے میں کوئی نیت نہیں ہوتی ہے۔ جب کوئی نیت نہیں ہوتی تو نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی ثواب ہے، ٹھیک ہے، کوئی نیت نہیں ہوتی، عام حالات میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن بعض حالات میں نیت کرنے میں بھی ہوتی ہے اور چھوڑنے کے لحاظ سے بھی ہو جاتی ہے، تو جب نیت اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے اس کو ثواب بھی مل سکتا ہے اور سزا بھی مل سکتی ہے اس کی نیت کے لحاظ سے۔ بھی کوئی اس میں خاص طریقے سے کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو تو آپ پوچھیے، ویسے میں نے کئی مثالیں دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور وہ واضح بھی ہے، مثالیں بالکل واضح ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کبھی بھی نیت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نہیں، تو نیت کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے، کتنے بھی حکم لگانے میں، بہت سارے عمل میں حکم لگانے میں نیت کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ برائی اگر چھوڑ دیا ہے تو بھی کبھی ثواب ملتا ہے اس کو، کبھی برائی نہیں کیا ہے تب بھی کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے، اس کی اپنی نیت کے لحاظ سے۔ ہاں جی، ایک شخص ہے وہ اگر میرے کو 20,000 روپے ملتے ہیں، ہاں 10,000 جو ہے پھر اسے 20,000 روپے ملتے ہیں، اس کے دل میں آیا ٹھیک ہے میں دوں گا، لیکن جب اس کے بعد اصل میں آتے ہیں 20,000 روپے تو دیتا ہے، کوئی بات نہیں، دینے کا صرف نہیں لکھی جائے گی۔ کبھی بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نیکی کا ارادہ کرے آدمی اور کر نہیں پایا کسی وجہ سے تو معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں تو آپ نے نیکی کا ارادہ کیا ہے لیکن آپ کو کرنے کی گنجائش بھی ہے اور آپ کر نہیں رہے، تو یہ تو ایک طرح سے بخیلی ہو جاتی ہے۔ نیکی کا آپ نے ارادہ کیا تھا زبیر بھائی کو 10,000 دینے کا، آپ کے پاس 20,000 آلریڈی موجود ہے، آپ نے 10,000 ان کو دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اتفاق سے اسی وقت دوسرا کوئی کام نکل آیا اور آپ نے 20,000 وہاں دے دیے، ان کو دے نہیں پائے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ ایک نیکی کا ثواب ملے گا، وہ اصل میں وہ شکر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے اس لیے سب کچھ ہے، یہ کروں گا، جب آیا تو وہ بخیلی آگے کام آگے، تو یہ جو ہے دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس میں تو بخیلی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے کہ پہلے پیسہ لے لو، اس کے بعد اس کی محبت آتی ہے، پھر کسی کو دینے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہاں آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ میرا جو پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیجیے تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ خود پہلے اپنے پاس لے لو پیسے کو، اس کے بعد آپ دیجیے تو بات ہو سکتی، کیونکہ وہ پہلے ارادہ کر لینا الگ ہے، مال مل جانے کے بعد اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کرنا۔ جی یہ سزا دیکھیے، جو سزا دنیا کے اندر ہے
وہ اسلام میں متعین ہے. ان چیزوں کی سزا دنیا میں مل سکتی ہے جو سزا متعین سزا ہے اسلام کے اندر تو دنیا میں بھی ہوگی. جیسے چوری کا معاملہ ہے. اچھا افعال تورک میں دنیا میں کوئی سزا نہیں ہوگی. دنیا میں کوئی سزا نہیں. جی یہ اچھا بہت بہت شکریہ عارف بھائی کا کہ جو ہے انہوں نے یہ نقطہ یاد دلا دیا. یہ نقطہ مجھے کہنا تھا. جو ہے یاد رکھے گا اس کی جو بھی سزا ہوگی دنیا میں کوئی سزا نہیں. کام نہ کرنے کی سزا چاہے وہ کام کرنے کا پورا ارادہ تھا دنیا میں کوئی سزا اس کی نہیں. یعنی کوئی حد وغیرہ نافذ نہیں کی جائے گی. قصاص نہیں ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر. کوئی سزا نہیں ہے اس کی. یہ سزا کس کے لحاظ سے ہے؟ آخرت کی. جو میں نے مثال دی تھی آپ کو القاتل والمقتول فی ما فی النار وہ کس کے لحاظ سے ہے؟ آخرت کے لحاظ سے. دنیا میں سزا جو ہوگی وہ تأدیبی ہو سکتی ہے ادب سکھانے کے لیے. لیکن جو شرعی سزا ہوتی ہے جس کو حد نافذ کرنا کہتے ہیں وہ کوئی حد نافذ نہیں کی جائے گی. جیسے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. جیسے ابھی علی پہلے جو کہا اسی کے لحاظ سے ایک شخص گھر میں گھس آیا چوری کرنے کے ارادے سے. چوری کرنے کے ارادے سے گھس آیا. مکمل طریقے سے اس کا ارادہ ہے اس کی نیت ہے سب کچھ ہے وہ. لیکن لوگ جاگ گئے تو بھاگ گیا. بھاگتے ہوئے راستے میں کسی نے پکڑ لیا اور حکومت کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ چوری کرنے کے ارادے سے گیا ہوا. لیکن چوری کر نہیں پایا ہے. وہ یقینی طور پر اس کو گناہ اس کا ہوگا اس لیے کہ چوری کرنے کی اس کے دل میں نیت تھی اور لوگوں کے جاگنے کی وجہ سے وہ بھاگا ہے. نہیں کر پایا ہے چوری لیکن اس کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا. جو شریعت کی سزائیں دنیا کے اندر ہیں وہ نافذ نہیں کی جائے گی. آخرت کی سزا الگ ہے جو نیت کے اوپر ہوگی اس کو. اور آخرت میں اس کو سزا مل بھی سکتی ہے اس کے اگرچہ کہ اس نے چوری نہیں کیا ہے. لیکن دنیا میں یہ سزا اس پر نافذ نہیں کی جائے گی. یہ ہماری جو ہے ہم نے کہا تھا آزاد ہی یہ کیا ہے ہمارے لیے ایک طرح سے الارم ہے کہ ہم کو اب درس بند کرنا ہے. اسی لیے ابھی جو وقت ہے آپ چاہیں تو جو بھی سوال کرنا ہے آپ کو اس کے تعلق سے آپ کر سکتے ہیں. اتفاق سے ابھی تو یہ فائدے ہوئے ہیں. میں جو وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ جو اس کو لکھ کر کے دے دینے کا اور تھوڑا طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہو نہیں پایا. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک وہ چیز ہو جائے کہ آپ کے سامنے ہو آ جائے. جی جی If the person intends to steal and does not get a chance to, then Shariat cannot be included Hadiya. وہی بات ہے. کیا سوال ہے؟ موقع نہیں ملا چرانے کا. جی ہاں. کیا ہدیہ یہاں دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے. ہاں جو شرعی سزا ہے وہ سزا نہیں ہے جس کو تعزیری سزا کہتے ہیں کہ ادب سکھانے کے لیے اس کو کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کو مار بھی سکتے ہیں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. اگر پکڑ گئے تو بھاری پڑ جاتی ہے اور جب نہیں پکڑے گئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چور جا کے پولیس میں کمپلین کر دیتا ہے کہ میرے کو اتنی بری طرح مارا. جی وہ مار بھی نہیں سکتے. یہ بھی ہے یہاں پہ قانون یہ ہے کہ لوگ نہیں مار سکتے اس کو. اور جیسے پولیس کے لوگ ہی یا کورٹ میں جو فیصلہ ہوتا ہے تبھی سزا ہو سکتی ہے. لوگ نہیں دے سکتے. یہ اسلام میں بھی ہے. لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. کبھی بھی اسلامی حکومت جو ہوگی وہی اس کے اوپر سزا نافذ کرے گی. لوگ نہیں نافذ کر سکتے. مدرسے کا بچہ سنیما دیکھنے جاتا ہے تو وہاں پہ اگر وہ واپس آتا ہے مدرسے اور استاد کے پاس آتا ہے سزا دنیاوی طور پہ سزا ملے گی. جی ہاں ملے گی. تو اگر وہ تب کہتا ہے کہ میں اللہ کے ڈر سے نکل گیا وہاں سے اس کا اعتبار نہیں کریں گے. نہیں کرے گا. بعد میں الحضور اب مقاصد دیا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ خاص طریقے سے دنیا میں جو ہے فیصلے جو کیے جاتے ہیں وہ اس کا زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے کہ امور کا ہمیشہ جو ہے خاص طریقے سے سزا کے معاملے میں ہمیشہ مقصد کیا تھا آپ کا اس کا ایک جو ہے لحاظ کیا جائے گا.
بقیہ یہ چیز کہ آپ نے کس نیت سے آپ بھاگ کر کے وہاں سے آئے، ہم صرف کہیں گے کس نیت سے آپ گئے تھے، کس نیت سے آپ بھاگ کر کے آئے، یہ ہم نہیں دیکھیں گے یہاں پر. ہاں اگر آپ اچھی نیت سے بھاگ کر کے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سزا سے بچ جائیں گے، وہ آپ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن آپ یہاں سزا سے نہیں دنیا کا کسی گھر میں چور گھس گیا ہے بعد میں یہ کہا کہ نہیں میں کسی مریض کی عادت کرنے کے لیے آیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے یہاں تو ہم نہیں سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی نیت کے لحاظ سے وہ مسئلہ ہوگا. یہاں تو کس کے مقصد کے لحاظ سے ہم فیصلہ کریں گے بھائی کہ کوئی آدمی عادت کرنے کے لیے رات کے 12 بجے نہیں آتا ہے اور چور دروازے سے نہیں آتا ہے بلکہ سیدھے دروازہ بیل بجا کر کے آیا ہوتا ہے، ایسے کیسے آئے گا وہ جو ہے. ہم تو یہاں مقصد سامنے آئے ہمارے کہ آپ کا مقصد یہ کہاں ہے. کوئی پکڑا گیا، چور پکڑا گیا ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جی ہیں اس دنیا میں، کیا آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی؟ نہیں، آخرت میں اس کی سزا نہیں ملے گی. اس کا ایسے تعلق تو نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ شریعت کا ایک عام ضابطہ ہے یہ کہ اگر کسی بھی شخص کے اوپر حد نافذ کر دی گئی دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی جرم کی وہ حد نافذ کر دی گئی ہے، تو آخرت میں اس کی سزا نہیں ہے. یہ حد اس کے لیے کفارہ ہے، یہ حدیثوں میں ہے کہ حد اس کے لیے کفارہ ہے. ایک آدمی جو ہے تقریباً 100 آدمی کو قتل کر دیا، اس کے بعد جو ہے اس کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا گیا نافذ کر کے، تو اس کو بھی اس کے بعد آخر میں سزا نہیں ہے. کوئی سزا نہیں. اگر اس کو اس کے بدلے میں دنیا میں قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا ہے، قصاص کے طور پر، ایسے ہی نہیں کسی شخص نے جو ہے باقاعدہ اسلامی اس کے لحاظ سے قصاص کے طور پر اس پر حد جاری کر دی گئی ہے، نافذ کر دی گئی ہے، تو اب اس کے لیے کوئی، کیونکہ ایک قتل کی بھی وہی سزا ہے اسلام میں اور 100 قتل کی بھی سزا وہی ہے، یعنی قصاص. اس کے علاوہ کر بھی کر سکتے ہیں، اس کو 10 مرتبہ زندہ تو نہیں کر سکتے. وہی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 100 مرتبہ زندہ کر کے مارے گا. ہم تو ایک ہی مرتبہ مار سکتے ہیں. وہ اکثر یہ مثال دی جاتی ہے کہ ہٹلر جو ہے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. تو کوئی بھی دنیا کے قانون کے مطابق اگر 6 لاکھ مقتولوں کو حساب کتاب برابر کرنا ہے تو وہ آخرت میں سزا ملے گی، اس کو آخرت میں سزا ملے گی، کیونکہ دنیا میں تو اس کے اوپر حد نافذ نہیں ہوئی، تو آخرت اس کو سزا اگر شریعت کے باقاعدہ ایک ٹرائل کے ساتھ حد نافذ ہو گئی ہے تو آخرت میں بھی سزا نہیں ہوگی. کیونکہ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جب حد نافذ کر دی جاتی ہے تو حدود یہ کفارہ ہے گناہوں کے لیے، لیکن اسی گناہ کے لیے جس گناہ کی اس کو سزا دی گئی ہے. جیسے کسی شخص نے صدام حسین بری ہو گئے. اسلامی اس کی سزا نہیں دی گئی ہے، اس کو اس کی سزا نہیں دی گئی، دوسری بات ہے اس کو اس کی سزا نہیں دی گئی ہے. میں نے آپ سے یہی کہا کہ اسی جرم کی اس کو باقاعدہ سزا دی گئی ہے، اس کو قصاص اور حد کہتے ہیں. کوئی مثال، ایک آدمی نے 100 آدمی کو قتل کیا تھا، کسی نے اس کو قتل کر دیا، وہ قصاص نہیں ہے، مقدمہ چلا کہ وہی جو یعنی شریعت کے روشنی میں مقدمہ ہونا ہے. وہ بھی شریعت کے لیے ضروری ہے. ہاں شریعت کے روشنی میں کسی اور قانون کے تحت اگر اس کو یہ کر دیا اس میں وہ نہیں آتا، حالانکہ سزا دونوں میں سیم ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، لیکن جو ہے اس میں وہ چیز نہیں آتی. شریعت کے لحاظ سے اس کے اوپر حد نافذ، میں نے وہی کہا کہ جو حد نافذ کی گئی ہے قصاص، جہاں پر اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، لازمی طور پر اس کے لیے توبہ ہے اور کچھ بھی نہیں کرتے. جیسے ہندوستان کا معاملہ ہے، ہندوستان میں کسی شخص نے چوری کر لیا ہے اور اب وہ توبہ کر رہا ہے اپنی چوری سے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا، لیکن وہ جو سامان اس نے چوری کیا تھا اس کی توبہ یہی ہے کہ وہ سامان واپس کرے اور اللہ سے توبہ کرے کہ اب میں جو ہے دوبارہ یہ نہیں کروں گا. اس کو آخر میں کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن اب یہاں اس کے لیے حد نافذ کرنے کا معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے ہندوستانی قانون کے تحت بھی جو ہے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے جی، ہندوستانی قانون کے تحت اس کے اوپر مقدمہ چلا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جی، پھر بھی جو ہے اس کو اللہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اس کام سے توبہ کرنا ضروری ہے اس کو، اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. شریعت کا ٹرائل ضروری ہے اس میں، شریعت کے لحاظ سے اس کے اوپر حد نافذ کی گئی ہے. وہی چیز کسی اور طریقے سے ہو گئی ہو. میں اس میں جو ہے ایک اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قواعد کے تعلق سے ایک بات کہی ہے، وہ ابھی جو آپ نے وہ یہ سوالات کی تو بات میرے ذہن میں آئی، جو ہے جیسے یہی ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہے، کسی شخص کا ہاتھ کسی چیز میں کٹ گیا اتفاق سے، حد تو نافذ نہیں کی گئی، تو وہ اس کے لیے کفارہ نہیں ہے. حالانکہ ہاتھ کٹ گیا ہے، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ
चूंकि हद नाफिज नहीं की गई इसलिए वो कफारा नहीं है। एक मिसाल इसके बारे में इसी कायदे में वो भी पेश किया है उन्होंने कि तर्क के अंदर नियत नहीं होती है, बगैर नियत के वो चीज हो जाती है। ऐसे ही कभी नजासत है, बगैर नियत की वो पाक हो जाती है, बगैर नियत के पाक। एक मिसाल है वो, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई रास्ता चल रहा है, कोई गंदगी उसके चप्पल में लगी तो क्या कहा, उसके बाद जो चला वो उसके लिए पाकी बन जाती है, हालांकि उसकी कोई नियत नहीं है। गंदगी उसके कपड़े में कहीं लगी हुई थी, बारिश से पानी, बारिश हो रही थी, बारिश का पानी लगा और गंदगी क्या हो गई, साफ हो गई। अब वो कपड़ा क्या माना जाएगा, हालांकि उसकी कोई नियत नहीं। तो कभी ऐसा भी होता है कि ये जो जाहिरी चीजें होती हैं, अगर वो चीज खत्म हो जाती है उसके बगैर किसी नियत के, तब भी वो हुक्म शरीयत का आ जाता है, तहारत का हुक्म आ जाता है, वो असल है। जी और कोई सवाल नहीं है, वो छोड़ दें। हाँ ये तो दो कायदे हुए आज हैं, इसके पहले तो एक बड़े कायदे के तहत कितने हो गए, 4 कायदे। अब आपको याद दिला देता हूँ एक मतलब पूरा। पहला कायदा हमारा क्या है, अल उमूर बिमकासिदिहा, उसके ज़िम्न में हमने एक कायदा पढ़ा, मन इस्तअजल शयअन क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहिरमानिही। हाँ, मक़ासिदुल अल्फ़ाज़ि अला नियतिल लाफ़िज़ि इल्ला फ़ी सूरतिल हालिफ़ि फ़इन्नहु अला नियतिल मुस्तहलिफ़ि। अरे लंबी पड़ जाती है इबारत, इसलिए थोड़ी पढ़ उर्दू में भी याद हो जाए तब भी ठीक है, कोई हरज नहीं है। आज के 2 हैं, एक क्या था, ला तवाब वला इक़ाब इल्ला बिनियति, और एक है माला तदखुलुहु नियतु मिनहा अफ़आलु अत्तौब। दोनों को साथ मिला करके मैंने आपके उसकी वज़ाहत कर दी है, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।